लेकिन तुम उसे निकालते रहना, और फिर वो थक जाएगा, और फिर तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। आज तुम भले कितने भी सेंसिटिव हो, तुम कितने भी इमोशनल हो, तुम कितने भी पेन में हो, लेकिन तुम जब ये चीज बार 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 करोगे, एवरीथिंग विल गेट सॉर्टेड, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन बिकॉज इट इज साइंस। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कुंडली तुम्हारी रीड करके बता रही हूँ कि 3 दिन में ये चमत्कार हो जाएगा। आई एम नॉट डूइंग एनी प्रेडिक्शन, we are creating the future, we are not predicting the future over here। हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं, एंड वी आर learning to get aligned with our own self, with our own goals and getting aligned with the universe। तो ये नहीं है कि हम ऐसे सोच रहे हैं कि 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर जब चेंज आ जाएगा, द मटेरियलाइजेशन हैज टू हैपन, मैनिफेस्टेशन हैज टू हैपन, बिकॉज इट इज साइंस, इट हैज टू हैपन इन अ वे। तो वो साइंस ही है, उसमें हमें फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने मिक्सर के अंदर कोई चीज डाल दी तो वो ग्राइंड होने ही वाली, देन यू डोंट थिंक, बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस। So same way, if you are cleaning your subconscious mind and you are changing the patterns within, and then you are forming new patterns and you are working on those patterns, and because your subconscious mind is always connected constantly with the law of attraction, it is going to attract what you are giving it to attract। एंड इन फैक्ट इफ यू ऑल्सो सी राइट नाउ, अगर आप थोड़ा सा बैठ के एक शांति से बैठ के अगर आप एनालाइज करेंगे अपने आप को, आप पॉन्डर करेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि लाइफ में कहीं ना कहीं आपको जो मिला है आप ही की क्रिएशन रही है, समवेयर और दी अदर, एक्सेप्ट अ फ्यू थिंग्स। ऑफ कोर्स यू वुड नेवर क्रिएट डेथ ऑफ योर लव्ड वन, बट डेथ में जो पेन है और वो पेन के पीछे का कुछ जो रीजन है, हो सकता है knowingly unknowingly your soul has created that। see, we do not create the action, but we create the emotion related to that action। are you getting it? you cannot create someone's death, you won't create that। of course you would say that I any, कोई भी पागल होगा क्या जो अपना एक्सीडेंट क्रिएट करेगा? फिर एक्सीडेंट क्यों हो जाएगा? कोई पागल होगा क्या कि वो अपनी ऐसे क्रिएट करेगा कि मेरे घर में चोरी हो जाए, मेरे साथ ये हो जाए, है ना? No one would create murders, no one would create robberies, no one would create deaths। then how this is happening? we are not creating actions, we are creating the emotion related to that action। हमने वो कहीं ना कहीं knowingly unknowingly consciously unconsciously पेन क्रिएट कर। that is why it is bad to watch movies which are negative, or to watch serials which are negative, or to watch anything Netflix पे भी। do not just watch because you have a subscription of any Netflix or any other kind of that platform, just because you have it and you are watching it। always understand that whatever you are watching, whatever you are listening, whatever you are speaking, whatever you are feeling, whatever you are smelling, tasting, all the time, it is creating a story within you। so इसीलिए when you are pregnant, people say you 9 months you have to be careful of what you watch, what you listen, what you do। why? because along with your patterns, the child is also getting patterns, उसके भी patterns बन रहे हैं उसके mind में। that is why the emphasis, at least in India, if I would say, I don't know about other countries, but India may we give too much of emphasis and importance on what you do these 9 months। so they are very powerful। why it is like that कि जो लोग नॉनवेज भी खाते हैं कुछ दिन नॉनवेज नहीं खाते, या जब कोई फेस्टिवल्स होता है तो बोलते हैं उपवास करते हैं, because these are the ways in which you are channelize your body and mind। you are trying to align your inner world, and then you are trying to heal yourself, your inner world, and then you are in a way trying to attract what you really want। all of the festivals, whatever rituals you follow, some or the other, the meaning, the crux of it is कि आपके अंदर healing promote हो, आपकी alignment हो, और आप materialize कर पाए जो आप चाहते हैं। so that is the idea always। so you have to understand that whatever you are doing has a specific meaning behind it, and we never create always the specific actions, but we create the emotions behind it। ऐसा नहीं है कि आप यही पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट करेंगे वही पर्टिकुलर सिचुएशन होगी, कई बार इट इज द इमोशन दैट यू आर अट्रैक्टिंग। बट आज जब हम क्रिएट करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम एक्शन इमोशन सब क्रिएट करें, क्योंकि अब हम वाइजली क्रिएट कर रहे हैं। मैं अभी तक जो बात कर रही हूँ वो इग्नोरेंटली जो आपने क्रिएट किया है, और आप उसी पेन में रह रहे होंगे। when you are at that vibration frequency, you attract more। तो एंजाइटी से बचने के लिए भी सबसे अच्छी बात क्या है पता है? जब भी एंजाइटी होती है,
एंजाइटी इसलिए क्योंकि तुमने या तो कोई पेन ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है लाइफ में, तुम्हें डर है कि मुझे पेन दूसरी बार ना मिले। या एंजाइटी इसलिए भी होता है कि तुमने कहीं से कोई चीज़ पढ़ ली है, तुमको लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो मेरे साथ, ये फैक्ट नहीं है, ये तुम्हारी सोच है और तुम इस पेन से भागना चाहते हो। यू वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम दिस पेन एंड यही तुम्हें डरा रहा है और तुम एंशियस बन रहे हो। पर अगर तुमने यही पैटर्न निकाल दी, ये पेन को ही अपने दिमाग से निकाल दिया, तुमने अगर हैप्पीनेस की पैटर्न इंस्टॉल कर दी, तुमने एक सक्सेस की पैटर्न इंस्टॉल कर दी, तुमने एक अच्छा करियर, ब्राइट फ्यूचर करियर, एक ब्राइट फ्यूचर जहाँ पे तुम्हारे फैमिली मेंबर्स है, तुम्हारे पास पैसा है, अबांडेंस है, तुम्हारी अच्छी लाइफस्टाइल है, तुम्हारे अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी सेहत है, तो ये ऑटोमेटिक तुम्हारी एंजाइटी चली जाएगी। क्योंकि तुमने अब तुम पेन पे नहीं फोकस कर रहे हो, अब तुम गेन्स पे फोकस कर रहे हो। मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, मैं यहाँ पे कैसा जीने आई हूँ, कैसा जीने आया हूँ। अगर इस पे फोकस रहेगा तो यही क्रिएशन होगा, राइट। अस्मिता, लाइक father has gone, but then the father's that has created a pain in you. Now you think, what will happen to my mother? It is because that you are in that pain. You have to understand that you have to detach yourself from that pain. वो पेन निकालना पड़ेगा। डजंट मीन अगर तुमने पेन निकाल दिया तो ऐसा नहीं कि तुम पापा को भूल गई, ऐसा नहीं कि अगर तुमने सेलिब्रेशन कर दिया तो पापा को दुख होगा। मैं आपको बात बताऊं, सच में इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग फॉर द डिपार्टेड सोल्स, के लिए तुम्हें खुश रहना हो, if you are vibrating at the frequency of sadness, at the frequency of sorrow, at the frequency of misery, मैंने जैसे बोला कि एथनिक बॉडी कनेक्टेड होती है। मैंने अभी जैसे 1-2 दिन पहले ग्रुप में डाला था कि हमारी कितनी बॉडीज होती है, आपने देखा होगा पोस्ट, आई डोंट नो, अब सभी ग्रुप पे होंगे शायद, तो उसमें मैंने डाला है 5 बॉडीज होती है हमारी फैन क्लब में, शक्ति फैन क्लब में मैंने पोस्ट डाला है, एक वीडियो है सॉरी, उसमें उन्होंने बताया कि वी हैव 5 बॉडीज। तो फिजिकल बॉडी तो दिख रही है, उसके अलावा हमारे पास 4 और बॉडीज है, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी। तो तुम्हारी ये जो वाइब्रेशंस होती है वो सोल के साथ कनेक्टेड होती है। नाउ व्हेन यू आर वाइब्रेटिंग एट अ लोअर फ्रीक्वेंसी, मतलब तुम दुखी हो, तुम सेलिब्रेशंस नहीं कर रहे हो, तुम उस मातम में ही हो, तुम उस पेन में ही हो, तुम्हारा पेन वहाँ भी पहुँच रहा है। डू यू थिंक इज इट द राइट थिंग टू डू टू समवन हु हैज ऑलरेडी गॉट डिपार्टेड? जब यहाँ पे थे तभी भी प्रॉब्लम्स में थे, अब कहीं और है, तो हमें क्या होना चाहिए, हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए कि वो जहाँ पे भी हो वो खुश हो, वो जॉयफुल स्टेट में हो। बट उसके लिए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर हैप्पी हेयर। If you are not happy here, it would be very difficult for the soul also to feel that happiness or joy, because वहाँ पे भी pain पहुँचेगा। And it is not only someone who is departed, मतलब ये it is not related only to death. इनफैक्ट अगर आप दूसरे दूसरे कंट्रीज में रहते हो, दूसरे दूसरे सिटीज में भी रहते हो, अलग अलग रहते हो, तो भी ये होगा। अगर आप किसी, लाइक मैंने लास्ट टाइम में बोला था, अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, हेटरेट का हो या वरी का, ठीक है, हेटरेट भी नेगेटिव है, वरी भी नेगेटिव है, मतलब आप किसी के बारे में जो आप जिससे आप बहुत नज़दीक है, जो आपके बहुत क्लोज है, आपका कोई फैमिली मेंबर बाहर गए और आप उसके लिए चिंता कर रहे हैं, अरे कुछ हो तो नहीं गया, अरे एक्सीडेंट तो नहीं होगा, ये तो ये वाइब्स भी उनके लिए खराब है। यू रियली केयर फॉर देम, ऑलवेज थिंक कि वो जहाँ पे भी है वो सेफ है, वो जहाँ पे भी है वो सिक्योर है, उनको हेल्प मिल रही है, वो हेल्दी है, वो अबंडेंस में है, उनको सब चीज़ें मिल रही है जो उनके लिए नेसेसरी है। जब आप ऐसे वाइब्स भेजेंगे तो यूनिवर्स से भी उनको हेल्प मिलेगी। सो ये आपको समझना है कि आप वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से जुड़े हैं। तो इट डजंट मेक एनी सेंस दैट इफ समवन हैज गॉन वी शुड नॉट सेलिब्रेट लाइफ, वी शुड not live happily, we should not live joyfully. In fact, that is something that you must do when the person has left. तो वो तो एक्चुअली तो जब हम साथ में रहते हैं तभी भी ये होना चाहिए आइडियली, लेकिन नहीं होता है ना। हम जब साथ में रहते हैं तो उतना मतलब हमारे इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे लाइफ में जो कुछ भी होते रहता है, तो हम इतना अच्छे तो जीते नहीं हैं। तो पहला तो यही मैं लेसन आपको बताऊंगी कि अगर आप रह रहे हैं तो पहले तो खुशी खुशी रहो। होते हैं झगड़े, होते हैं डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन इतना मनमुटाव नहीं होना चाहिए आपके बीच में कि आप एक दूसरे से बात ना करें, मन में बहुत गुस्सा रखे, हेटरेट रखे, वो और ये इट इज़ ऑल स्टुपिडिटी, ये सब नहीं होना चाहिए। बट सपोज तभी आपको ये ज्ञान नहीं था और कोई चले गया आपकी लाइफ से, एटलीस्ट नाउ बिकॉज यू नो इट, एटलीस्ट नाउ बिकॉज यू कैन डू समथिंग फॉर देम, डू इट राइट अवे, do it right away. Because if you are in pain, you will see that someone who is connected to you will also get pain. ये पनिशमेंट कुछ काम का ही नहीं है, ये सेल्फ पनिशमेंट कुछ काम का ही नहीं है।
बहुत लोग सेल्फ पनिशमेंट देते हैं, मैंने बुरा कर दिया, आई हैव टू पनिश माई सेल्फ। डू नॉट पनिश योर सेल्फ। तुम्हें लगता है कि तुमसे कोई गलती हो गई है तो उसे सुधारो। ये नहीं कि पनिशमेंट में, गिल्ट फील में तुम ही वापस लो वाइब्रेशंस में चले जाओ। if you are sick, how will you cure others or how will you heal others? If you have done something bad and you want to heal that, you will have to first heal yourself, and that won't happen if you are in guilt, if you are in remorse, if you are doing self punishment, it won't be possible. So ये important है कि पहले आप वहां से निकले। इसलिए सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ क्लीनिंग, है ना, सेल्फ फॉरगिवनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, ये सब होना चाहिए। तुम अंदर से खुश होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसेंशियल है। और जब तुमने पास्ट में से लेसन सीख लिए ना, पास्ट तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम अगर ये भी एक आंसर है क्वेश्चन को कि पास्ट बार बार क्यों याद आ रहा है, तुम्हारे पास टाइम ही कैसे है पास्ट को याद करने का? वेले लोगों को पास्ट याद आता है, सच बताऊं मैं, अब ये दिमाग में डाल देना, अपने लिख लो, एक बड़े से सेंटेंस लिख दो, एकदम वेले लोग होते हैं ना जिनको कुछ काम नहीं करना, उनको ही पास याद आता है। तो ये वाली एटीट्यूड छोड़ दो, पास आना ही चाहिए तुम्हें याद। क्यों आएगा? लेसन सीख लो। तुम्हारे लेसन क्या है? तुम्हें चाहिए तो एक डायरी में लेसन सीख लो, ये मेरे लेसन है, बस ये मुझे ध्यान में रखना है। और अच्छी चीजें पास की याद रखनी, बस पास, और याद करना ही नहीं। कचरे को क्यों याद करोगे? तुमने डस्टबिन में कचरा फेंका सुबह, तुम याद करोगे मैंने क्या कचरा फेंका था? और फिर मजे की बात ये कि तुम दूसरे दिन भी फिर याद करोगे तुमने पहले दिन क्या कचरा फेंका था, या तुम्हारे डस्टबिन में कितना कचरा है। ये तो ऐसी बात हो गई कि तुम कचरे को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इतना वैल्यू दे रहे हो कि तुम्हारे पास प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए टाइम ही नहीं है। अपने प्रेजेंट को इतना हैप्पी बना दे और अपने फ्यूचर को इतना ब्यूटीफुल बना दो कि तुम्हें पास्ट ही याद ना है। मेक योर प्रेजेंट very happy and make your future very bright to an extent where you completely forget your past pains. Past याद ही नहीं आना चाहिए मुझे, lessons याद रहेंगे और lessons याद रखने ही हैं। नहीं तो फिर क्या मतलब हुआ लाइफ का कि पहले भी बेवकूफ बने थे अभी भी बने, तो वो नहीं होना चाहिए। आफ्टर नर्सरी you take one class ahead and then you reach to SSC or HSC or graduation. So everywhere that promotion has to happen. तो लेसन सीख के रखना है, लेसन डम नहीं बनना है तुम्हें, लेकिन उसमें रहना भी नहीं है, उस पेन में नहीं रहना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि कभी कोई चीज़ मुझे याद आती है तो मैं इमीडिएटली अपने आप को बोलती हूँ, डू आई रियली नीड टू गिव वैल्यू टू दैट इवेंट, टू दैट पर्सन, टू दैट सिचुएशन? आर दे रियली दैट इम्पॉर्टेंट? लेट मी जस्ट लर्न द लेसन एंड लेट मी जस्ट लीव ऑल ऑफ दैम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबको, और फॉरगिव करना भी यही होता है। फॉरगिव करना भी इसलिए होता है ताकि तुम्हें पीस मिले, तुम्हारा कंस्ट्रक्शन हो, तुम्हारी लाइफ में सक्सेस आए। इसलिए नहीं क्योंकि तुम देवी बन गए, तुम देवता बन गए, तुम महान बन गए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुमने फॉरगिव कर लिया तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। दिल बड़ा है छोटा है किसको फर्क पड़ता है? तुमने फॉरगिव किया, तुम्हारा भला हुआ। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी चेक करते रहना, कैसा सोच रहा हूँ मैं, कैसा फील कर रहा हूँ, कैसे फील कर रही हूँ मैं, हाउ एम आई फीलिंग, हाउ व्हाट एम आई थिंकिंग। इफ दैट इज इन प्लेस यू विल क्रिएट व्हाट यू वांट। देन डोंट गेट इनटू थिंग्स दैट दिस ये छोटी छोटी बातों में मत उलझ जाना। लाइफ में एक ही चीज मैटर करती है, बाहर का पॉलिटिक्स तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, गवर्नमेंट तुम्हें परेशान नहीं कर सकती, तुम्हें बारिश परेशान नहीं कर सकती, तुम्हें वायरस परेशान नहीं कर सकता, तुम्हें सिर्फ तुम ही परेशान कर सकते हो। अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो आप अपने आप को हैप्पीनेस दे रहे हो, अगर आप बुरा सोच रहे हो तो आप पेन दे रहे हो। तो कौन हुआ आपका दुश्मन? आप ही सबसे बड़े दुश्मन हो। और कौन हुआ आपका सबसे बड़ा दोस्त? आप ही हो सबसे बड़े दोस्त अपने। You are the best friend of yourself. Have you any time thought of it that what wonders you can make when you are sitting with yourself all alone? हम तो डर जाते हैं, 2 घंटा भी हमें अकेला, अरे मैं तो बोर हो जाऊंगा, बोर हो जाऊंगी। अकेले रहने की मजा भी अलग है। अगर तुम्हें सेल्फ लव करते आ गया तुम्हें बड़ा मजा आएगा। Whether you are single, whether you are committed, whether you are married, whether you are divorced, whether you have money, you don't have money, it has nothing to do with your peace, happiness, joy, success inside. मुझे बताओ, अगर तुम अभी ऐसे सोचो कि मैं मर्सिडीज में घूम रहा हूँ, इसमें तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुम्हें तो सच में मर्सिडीज भी नहीं चाहिए। अगर तुमने इनर वर्ल्ड में मर्सिडीज में घूमना शुरू कर दिया और तुमने उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया, तुमने तो जी ली तुम्हारी जिंदगी। यस और नो?
everything that you want has to get created within first. यही तो तुम्हें करना है। और तुम इतना करो इतना करो इतना करो कि तुम्हारे माइंड में ऐसी स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स बने कि वो तुम्हारे बॉडी को बोले कि अब तुम काम करो। See what I'm telling you, if you're creating 50,000 inside, I want 50,000, and you are living that experience and you're enjoying that experience and you're making the pattern of it, what will happen now? Now your mind will say to your body, come on, get up, you have to do the actions, and तुम actions लोगे। और फिर वो तुम्हें पुश करेगा, और जैसे ही वो पुश करेगा तुम एक्शन मोड में आओगे। एक्शन मोड में आने के लिए भी तुम्हारी स्टेट अच्छी होनी चाहिए, और स्टेट अच्छी होने का मतलब ये है कि तुम अंदर से पॉजिटिव हो। और अंदर की पॉजिटिविटी का मतलब ये होता है कि तुम अंदर पॉजिटिव सोचो, अंदर पॉजिटिव फील करो, और अंदर पॉजिटिविटी को एक्सपीरियंस करो, तुम जियो उसको। तुम्हारे रिलेशनशिप बुरे चल रहे हैं, है ना? एक एग्जांपल दे देती हूँ। हम लोग जब मैरिज करते हैं या हम जब कोई नए रिलेशनशिप में आते हैं, पहला 1-2 एनकाउंटर मजा आता है, मस्त मस्त डेट होती है, अच्छी प्यारी बात होती है, हम प्यार से बात करते हैं, सामने वाला करते हैं। 2-3 मुलाकात के बाद या 1-2 महीने के बाद झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? जैसे झगड़े होने शुरू हो गए, हमें वो झगड़े याद रहते हैं, और फिर वो हमें याद रहता है ना, इसलिए झगड़े बढ़ते ही रहते हैं। फिर हम बोलते हैं कि शादी का, ये तो मैंने बहुत सुना है, शादी का पहला साल बहुत अच्छा होता है, उसके बाद खराब होता है। क्यों? क्योंकि पहले साल के बाद जो दूसरे साल में तुम्हारे झगड़े हुए ना, अब तुम्हें वही याद रह रहा है, तो पहले साल का कुछ याद ही नहीं रह रहा है। अब मैं टेक्निक में यही कराती हूँ, मेरे पास कोई आया तो मैं उसको पहला साल याद दिला देती हूँ, उसकी मैरिज वापस से ठीक हो जाती है, बच जाता है डिवोर्स से वो। तो प्रॉब्लम क्या थी उससे जो दूसरे साल में जब प्रॉब्लम हुई, उस प्रॉब्लम को ही पकड़ लिया उसने, अब पहले साल तो उसको याद ही नहीं है। तुम चाहते हो कि तुम्हारा हनीमून पीरियड बार बार आए, मतलब वो जो खुशी जो तुम्हें मिली थी 8 दिन 10 दिन में, वो रिलेशनशिप में तुम्हारा कॉन्स्टेंटली रहे, तो तुम्हें उसको याद रखना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम ये, तुम तो उसको भूल गए हो। दैट इज वाई मैरिज बिकम्स अ डिजास्टर। एंड दिस इज विथ एवरीथिंग, with your business, with your job, with your promotion, with your success, with your relationship, with everything. One wrong incident and you keep thinking about it, and it keeps multiplying, and then you start crying, and then you say it is over. Why don't you remember something that has happened so many times good to you? बहुत बार होगा जब अच्छा हुआ होगा। Why is it so कि वो याद नहीं रहता है? वो तो गया, वो तो ठीक है, वो तो हो गया, वो याद नहीं रहता है ना, इसलिए डिजास्टर होता है। अगर वो याद तुम्हें रखने की टेक्निक आ गई, तो फिर तुम्हारे सारे रिलेशनशिप्स इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। तुम्हें वही याद रहता है जो बुरा हुआ है, तुम्हें वो याद ही नहीं रहता जो अच्छा हुआ है। तुम अच्छा याद रखना सीख गए और तुम बुरा भूलना सीख गए, तो तुम जिंदगी जीना सीख गए। बस जो बुरा है उसे भूल जाओ, और जो अच्छा है उसे तो बार बार देखो। तुम्हें चाहिए, you want your husband or your wife to behave in a particular way, तो उन्होंने जो एक अच्छी चीज तुम्हारे साथ की थी, कभी तो की होंगी ना। हम क्लाइंट्स को पूछते हैं, कैसे बोलते हैं क्लाइंट्स जब आते हैं, तो मेरे हस्बैंड के और मेरे तो रोज झगड़े होते हैं, मेरे हस्बैंड मुझे समझते ही नहीं, मेरी वाइफ तो मुझको समझती ही नहीं है, एक बार भी नहीं, ठीक है? और वर्ड्स कैसे लगाएंगे? ऑलवेज, नेवर, कभी भी, हमेशा, ऐसे वर्ड्स रहते हैं इनके। फिर उनको याद दिलाता है कि एक आध बार, हाँ एक बार हुआ था ऐसे, फिर 2 बार हुआ था, फिर धीरे धीरे उनको याद आना लगता है। फिर हम उसी इवेंट्स को बार बार उनके माइंड में प्ले कराते हैं। फिर 2 दिन के बाद आता है कि अरे मेरे हस्बैंड ने ऐसा मुझे किया, ही गिफ्टेड मी, ही टुक मी समवेयर आउटसाइड। तो मैंने बोला मैंने कुछ कमाल नहीं किया, ये तुमने जब रिकॉर्डिंग बार बार अच्छे पैटर्न्स की बनाई ना, तो वो वहां पे मटेरियलाइज हो गया। यही सब जगह तुम्हें करना है। तुमने एक बार पब्लिक स्पीकिंग में गड़बड़ की, तुम्हें वो याद रहेगा, पर तुमने और 3 बार अच्छी की थी, वो तो तुम्हें याद ही नहीं है। फिर तुम कैसे बोलोगे देन पीपल का, नहीं उस बार तो वैसा था कि इतने पार्टिसिपेंट्स थे नहीं, मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी मुझे मिल गया, ऑडियंस इतने नहीं थे। मतलब यू वांट टू जस्टिफाई योर फेलियर्स, and wherever you have got success, you want to somehow do not acknowledge it. And when you don't do this, what you do is, because you focus too much on your failures, on your negativity, on the things that have given you pain, you create more of that. क्यों ऐसा होता है कि पैसे वाले और पैसे वाले बनते हैं? क्योंकि उनके अंदर ये माइंडसेट है कि हम पैसे वाले हैं, और पुअर लोगों का माइंडसेट क्या है कि हम गरीब है। अगर हम यही सोचते हैं हम गरीब है, तो हम गरीब ही बनेंगे।
अगर जब आप पुअर हो और आप ये मानते हो कि ये फैक्ट है मेरी लाइफ का, और आप उसी को कंप्लेन करते हो और उसी पे फोकस करते हो, तो आप उसी को ही मल्टीप्लाई करोगे। देन जो लॉजिक वाले वो तो ऐसे बोलेंगे लेकिन वो तो फैक्ट है, फैक्ट तो बोलना है ना हमें, हम दिन में बहुत झूठ बोलते हैं लेकिन हम हमारी सच्चाई तो स्टैंप लगा के बोलते हैं। दिस आर लॉजिकली पीपल, लॉजिकल माइंड वाले, ये कभी भी लाइफ में मटेरियलाइज नहीं कर सकते। तो ऐसे जो फैक्ट वाले बंदे होते हैं वो फैक्ट में ही रहते हैं और उनकी लाइफ में कभी मटेरियलाइजेशन नहीं होता है। ये फैक्ट नहीं है तुम्हारा। तुम ये मानते हो कि तुम पुअर हो, ये तुम्हारी परसेप्शन है, तुम्हारा फैक्ट नहीं है। फिर तुम बोलोगे कि अगर किसी के पास खाना नहीं है, किसी के पास रहने के लिए ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो कैसे माने कि वो अबेंडेंट है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसके लिए तुम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो, जिसके लिए तुम, जिसकी जो चीज तो तुम एक्नॉलेज कर सकते हो, और यू कैन फील ग्रेट अबाउट इट, यू कैन फील ग्रेटफुल अबाउट इट। And even those poorest people would have something in their life that they can be grateful about. And when they live at that vibrational frequency, there are a lot of poor people who live and then they become rich. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गरीबी से अमीरी तक पहुंचते हैं। वो इसलिए कि वो जब भी उस गरीबी के फिजिकल फॉर्म में जब वो थे, पर उनकी जो इमोशनल और मेंटल स्टेट थी वो ये थी कि हमारे पास बहुत है और हम बहुत आगे जा सकते हैं। ये फैक्ट में मत जाना, तुम फैक्ट पकड़ के रहोगे तो तुम लाइफ में मिजरेबल रहोगे। ये फैक्ट नहीं है, फैक्ट वो है जो तुम क्रिएट करोगे। तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा हो, तो तुम बोलो ये मेरा फैक्ट है और मैं यही फैक्ट में जीना चाहती हूँ। फिर मत बोलना कि मेरे तो बहुत झगड़े हो रहे हैं, फिर मत बोलना मेरे पास तो पैसे नहीं आ रहे। तुम्हें क्या चाहिए? What you want should be your fact. Whatever fact you think you have and that fact is negative, do not focus on that. Because if you say this is the fact, it will remain the fact forever. It will remain the fact forever. If you think कि ये फैक्ट मेरा बदले, तो इस फैक्ट को फैक्ट बना के अपने को पकड़ के नहीं रखना है, अपनी जिंदगी में पकड़ के मत रखो। तुम छोड़ना सीखो। तुम्हें यही चाहिए कि मुझे एक अच्छी हेल्थ चाहिए, तो अच्छी हेल्थ को फैक्ट बनाओ। ये नहीं मेरे पास तो ये बीमारी है और मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मुझे तुम्हारे फैक्ट से कुछ लेना देना नहीं है और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। तुम अगर तुम्हारी नेगेटिव चीजों को अपनी फैक्ट बनाओगे, तुम्हारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी लो रहेगी एंड तुम कुछ मटेरियलाइज नहीं कर पाओगे। तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी लाइफ में मैनिफेस्टेशन हो और तुम्हें वो मिले जो तुम चाहते हो, तो ये तुम्हारे सो कॉल्ड फैक्ट से निकलो। फैक्ट वही है जो तुम अंदर क्रिएट करते हो, ये तुम्हारी रियलिटी होनी चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता है तुम पुअर हो, तुम कहीं पे भी जाओगे तुम पुअर ही रहोगे। और ये देख लेना, आजमा के देखना, एक बार आजमा के देखना। मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे जिनके पास सब कुछ है बट दे आर नॉट हैप्पी, बिकॉज उनको हैप्पीनेस में कैसे रहना है आता ही नहीं है। उनको हैप्पी कैसे रहना है उनको आता ही नहीं है। दे हैव नेवर लर्न दैट। You give them everything, they are not happy. And you see people, street children, छोटे छोटे, उनके पास कुछ भी नहीं है, and they laugh, and when they laugh they have so much of joy in their eyes and on their face. Such beautifully they laugh, because उनके पास लॉजिक नहीं है जो हमारे पास है। Happiness has nothing to do whether you are rich or you're poor, you are single, you are committed, you're black, you're white, you have OCD, you don't have anything. It has to do everything with you. ये हर एक मेंटल बीमारी जो हमें है, जिसका कोई नाम है या नहीं है, हम सब मेंटल है। हम सब मेंटल नहीं है। हमें कोई लगता है कि कोई गोली खा रहा है तो उसको मेंटल इश्यू है, नहीं, हम सभी को मेंटल इश्यू है। और इंडिया में तो सबको ऐसा लगता है कि ऐसे प्रोग्राम्स उन्हीं को करना है जिनको प्रॉब्लम है, बिकॉज यू डोंट वांट टू know what is going inside. This program is science of self, and somewhere or the other we all have all the problems. हम सभी को डिप्रेशन है, हम सभी को स्ट्रेस है, हम सभी को ओसीडी है, हम सभी को एंजाइटी है, नहीं है? किसी ना किसी मोमेंट पे तो हम कहीं ना कहीं लोग, हम सभी है। हम क्यों फिर किसी को ऐसे डिस्टिंग्विश करते हैं, अरे ये है, ये वो है? हम सभी वैसे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसे ना रहे, तो हमको वर्क करना पड़ेगा और हमको टेक्निक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, हमें योगा करना पड़ेगा, हमें प्राणायाम करना पड़ेगा, हमें एनएलपी करनी पड़ेगी, हमें सब चीजें करनी पड़ेगी। क्लियर? हाँ, सो नाउ विल बी डूइंग एंजाइटी का टेक्निक, उसके बाद विल डू हैप्पीनेस इंस्टॉलेशन, एंड देन विल डू हाउ टू रेज योर वाइब्रेशंस नो मैटर हाउ बैड योर डे इज। क्विकली, जस्ट 5 मिनट्स में कैसे हम अपने आप को
पॉजिटिव बना दे, अलाइन करे। सो दोज 3 टेक्निक्स विल डू। और जो भी आज मैंने बताया है वो ध्यान में रखना, कोई भी छोटी बातों में अटक मत जाना। छोटी बातों में जो इंसान फंसता है वो कभी भी बड़ा क्रिएट नहीं कर पाता। इफ यू वांट अ बिग लाइफ, स्टॉप लिविंग स्मॉल। इफ यू वांट अ बिग लाइफ, स्टॉप लिविंग स्मॉल। दैट्स इट। इतना ही मंत्र है। आस्क योरसेल्फ व्हाट डू यू वांट। तुम्हें मैग्नेट बनना है, मैग्नेट बनने चाहिए। तुम अंदर बहुत कूड़ा कचरा रखा है ना, संभाल के उसको निकालो। अपने आप को अब्यूज करना बंद कर दो, अपने आप को पनिश करना बंद कर दो, अपने आप को दुखी रखना बंद करो। तुम्हें स्टेट अच्छी रखनी है। जब तुम्हारी स्टेट अच्छी होती ना, बिलीव मी, तुम्हारे लाइफ में मिरेकल्स होंगे। तुम्हारा टाइम कितना भी खराब चलता हो, तुम्हारी स्टेट अच्छी होगी तो तुम्हारा टाइम भी बदल जाएगा। और तुम्हारा टाइम कितना भी अच्छा हो, तुम खराब स्टेट में रहोगे तो तुम डिप्रेशन में ही रहोगे। और जिनको डिप्रेशन होता है वो, उनके पास सब कुछ होता है पर उनके पास खुशी ही नहीं होती। सो हैप्पीनेस इज योर स्टेट ऑफ माइंड। हम कितने रिच है कि हम जब भी चाहे हम स्माइल कर सकते हैं, हम चाहे तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं, हम चाहे तो हमेशा पीस ऑफ माइंड में रह सकते हैं। जिस किसी से भी साथ हमारे झगड़े चल रहे हैं, लेकिन हम चाहे तो मन में हम ब्यूटी ही ब्यूटी, मतलब मन में हम प्यार ही क्रिएट करें, मन में हम रोमांटिक ट्रिप्स ही क्रिएट करें, हमारे मन में हम कुछ भी क्रिएट करें, लेकिन सिर्फ अपने वालों के साथ क्रिएट करना, बाजू वालों के साथ नहीं तो फिर मैंने बोला मैम ने सिखाया है, गलत काम मत करना क्योंकि फंस जाओगे उसमें। जब भी आइडल लाइफ पार्टनर का क्रिएशन करोगे, मुझे लोग तुम बोलोगे कि मेरे को मिस्टर और वो मिस पसंद है, वही क्रिएट होने वाले, तो मेरे पास मत आना क्योंकि वो क्रिएशन नहीं करवाऊंगी मैं। अपना जो है उसी में खुश रहना। सी, इट इज नेवर अ प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ पार्टनर, ऑफ योर बॉस, ऑफ योर नेबर। इफ यू आर नॉट हैप्पी, इट इज योर प्रॉब्लम। इट इज नेवर अ प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला, तुम्हारे आजू बाजू रॉन्ग लोग हैं, तुम्हारे आजू बाजू रॉन्ग सिचुएशन है, तुम्हारे आजू बाजू गलत चीजें हैं, पर तुम अगर खुश रह रहे हो, तुम पॉजिटिव रह रहे हो, या तो वो गलत चीज राइट हो जाएगी या तुम वहां से निकल जाओगे और तुम सही जगह पे पहुंच जाओगे। फिर तुम फंसना मत, फिर तुम मत बोलना कि गवर्नमेंट खराब है, फिर तुम मत बोलना कि जॉब में पॉलिटिक्स बहुत है, फिर तुम मत बोलना कि कंपटीशन बहुत है, फिर तुम मत बोलना कि मेरा हस्बैंड खराब है, फिर तुम फंस जाओ। कोई खराब नहीं है, सब अपने इवेंट टू वाले हैं। कोई खराब नहीं है, तुम्हारे अंदर तुम्हारी इवेंट टू है, उसके अंदर उसकी इवेंट टू है। दैट्स इट, नो वन इज बैड। इफ यू नो हाउ टू हैंडल योर इवेंट टू, यू विल बी एबल टू हैंडल एवरीवन अराउंड यू। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ऑलराइट, चलो पहले हम एंजाइटी करते हैं। ये टेक्निक इतनी ब्यूटीफुल है, इसमें तुम्हें कोई भी नॉनसेंस तुम्हारे अंदर घुस गया, तुम्हें एंजाइटी हो रही है, ये तुरंत तुम्हें निकाल देंगी। इसके अलावा ये तुम्हें एक प्रोटेक्शन का फीलिंग देगी, सेफ्टी का फीलिंग देगी, सिक्योरिटी का फीलिंग देगी। तुम्हें इसमें बहुत अच्छा फील होगा। और एंजाइटी होती है ये बॉडी में होती है, मतलब तुम्हें फील होती है, जैसे कि तुम्हें भारीपन लगता है, एसिडिटी जैसा लगता है, कोई घूम रहा है ऐसा लगता है, कभी यहाँ पे दर्द होता है, कभी चेस्ट में भारीपन, किसी को नेवल के साइड लगता है, किसी को पिंचिंग वाली फीलिंग आती है, किसी को एकदम ठंडा फीलिंग होता है, एकदम गर्म फीलिंग होता है। मतलब ये फीलिंग है, एंजाइटी इज द फीलिंग दैट यू फील इन योर बॉडी। ऑलराइट, and we'll be learning how you can get rid of this negative feeling in your body. You must feel good in your body, right? Yes or no? तुम जाते हो ना हमको ब्रांडेड कपड़े पहनने, पहले ब्रांडेड बॉडी बनाओ। ब्रांडेड बॉडी कौन सी होती है? ऐसी बॉडी जिसके अंदर अच्छी फीलिंग चलती हो 24 घंटे। ठीक है, तुम ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनोगे चलेगा, पर तुम ब्रांडेड बॉडी में रहना। ऐसी बॉडी जिसमें सिर्फ वेलनेस हो, ऐसी बॉडी जिसमें हैप्पीनेस हो, ऐसी बॉडी जिसमें पीस हो, ऐसी बॉडी जिसको जीने में मजा आ रहा हो। ये ब्रांडेड बॉडी होगी। तुमने ब्रांडेड कपड़े पहने नहीं पहने क्या फर्क पड़ता है? देयर इज नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग ब्रांड्स, बट दे डू नॉट डिसाइड योर हैप्पीनेस। सो फर्स्ट, ब्रांडेड माइंड होना चाहिए, ब्रांडेड बॉडी होना चाहिए, थॉट्स ब्रांडेड होने चाहिए, इमोशंस ब्रांडेड होना चाहिए। क्रिएट योर ओन ब्रांड। ये मेरा ब्रांड का इमोशन है, ये मेरे ब्रांड का थॉट है, ये मेरे ब्रांड की लिविंग है। भाई मैं ऐसे ही जीता हूँ, मैं पास्ट को याद नहीं करता, मैं पेन में नहीं रहता, ये मेरा ब्रांड है। क्रिएट योर ब्रांड और उस ब्रांड में तुम रहो।
कि मेरी बॉडी में मैं खराब फीलिंग लाऊंगा ही नहीं, मेरी बॉडी में मैं खराब फीलिंग लाऊंगी ही नहीं, कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, कुछ गंदा नहीं, कुछ नहीं, ये सब तुम्हारा टाइटल्स है। सो लीव योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अपने आप को हेट मत करो। पीपल हेट देमसेल्व्स, मैंने तो ये कर दिया, मैंने वो बुरा कर दिया, मेरे से ये गलती होगी, मेरे से वो गलती होगी, देन दे स्टार्ट हेटिंग देम, और फिर उसके रिएक्शंस बॉडी में दिखते हैं। हो गई गलती, अब क्या करना चाहते हो, अब सुधरो, अब कुछ करो, अब नया लाओ, चेंज। ठीक है, और अगर तुम्हारे साथ किसी ने बुरा कर दिया, उसका भी पनिशमेंट तुम देते हो अपने आप, यू नो। दैट इज वाई वी सी पीपल हु सफर रेप्स, मतलब जो बंदा करके जाता है वो तो उसको पनिशमेंट मिली नहीं मिली, वी हैव नो आइडिया, पर जिस बंदे के साथ हुआ होता है उसको ज्यादा तकलीफ होती है, बिकॉज दे स्टार्ट हेटिंग देयर बॉडी। सो उनका तो कोई फॉल्ट ही नहीं है। तो कई बार जब हमारे साथ कुछ गलत होता है लाइफ में, वी स्टार्ट हेटिंग आवरसेल्व्स इवन फॉर दैट। डू नॉट हेट योरसेल्फ फॉर एनीथिंग इन लाइफ। एज आई टोल्ड, इफ यू आर अलाइव देयर इज सम पर्पस, डू नॉट गिव अप ऑन इट। अगर गलती तुमसे हो गई है तो भी हेट मत करो, अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो उस केस में तो बिल्कुल हेट मत करो, फिर तो और डबल प्यार करो अपने आप से। कुछ गंदा नहीं है, कुछ भी गंदा नहीं, ये गंदी वाली चीज दिमाग में ऐसी बैठ जाती है ना, कुछ भी गंदा नहीं है। पता है, तुम अपने आप को तुम्हारे विचार से कभी भी पवित्र कर सकते हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे अंदर ही गंगा है। अगर तुम्हें अपने आप को पवित्र करना है, तुम कभी भी इस गंगा को अपने अंदर इग्नाइट कर सकते हो, और कभी भी तुम अपने आप को पवित्र कर सकते हो। इफ यू थिंक यू हैव डन समथिंग इम्प्योर, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, और समथिंग इम्प्योर और रॉन्ग हैज हैपेंड टू यू, देन जस्ट टेक दैट शावर विद इन। अपने थॉट्स और इमोशंस का एक शावर लो। प्योरिटी तुम्हारे अंदर है। प्योरिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है, ये प्योर है, ये इम्प्योर है, ये तुम्हारे साथ ये हो गया, ये नहीं हो गया। ये सब चीजें तुम्हारी सोच है, ये रियलिटी नहीं है। किसी ने ऐसा बोल दिया, ओ बाप रे तुमने ऐसा कर दिया, हाय, ये उसकी हाई परसेप्शन है, तुम्हारी नहीं है। ये उसकी परसेप्शन है, ये तुम्हारी नहीं है। ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ है नहीं है। जो जिसने हाय रामा कर दिया है, ये उसकी जर्नी है। तुम किसी और के पास जाओगे तो बोलेगे अच्छा ठीक है, कोई और के पास बोलेगे तो वो तो हम तो ये रोज ही करते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो don't see anyone with judgments, with labels, and don't see yourself also that way. Stop living this life, हम impure है, हम impure, हम ये प्योर है, ये इम्प्योर है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा कुछ नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और जब तुम्हें खून की जरूरत है, तुम्हें खून चढ़ रहा है, तुम पूछोगे क्या उसको भाई तुम्हारी कम्युनिटी क्या है, कौन से रिलीजन से आते हो, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या, तुमने नहाया है कि नहीं, तुमने क्या खाया है। हाँ, उस टाइम पे तुमको खून चाहिए होता है, तब तुम पूछोगे उस इंसान से। कभी तुमने देखा है कोई हॉस्पिटल में ऐसा क्वेश्चनर आता है और ब्लड देने के पहले डोनर से ये सब पूछा जाता है भाई कौन से रिलीजन से हो? नहीं, दे जस्ट चेक which blood group you belong to and whether you have that good blood to be transferred. That's the only thing, mandatory thing. They would never ask you then why do you get into all these things, this is bad, this is good, this is this, this is that. Don't see people with that kind of labels, and don't put yourself into labels. Do not judge and don't get judged over and again by your own self. ये सारी चीजें मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि टेक्निक से ज्यादा ना ये तुम्हारी हीलिंग करने में ज्यादा मदद करेगा ये सारी चीजें, क्योंकि यही तुम्हारी बिलीव्स है, लिमिटेड बिलीव जो तुम्हें लाइफ में रोके रख रही है। इन बिलीव से निकलो, इन चीजों से निकलो। मैं चाहती हूँ अभी जो हम यूथ है, यंग है, हम ये एटलीस्ट, हम इतना हमने पढ़ा है, इतने एजुकेटेड है, कम से कम हम ये ना करें, हम ना करें। भले हमारे पीछे की जनरेशन ये मानती थी, एटलीस्ट हम इस इग्नोरेंस में ना रहें। और यही प्योरिटी के साथ जब हम जिएंगे तब हम किसी और को भी जीने की राह दिखा सकेंगे, इंस्पायर कर सकेंगे, मोटिवेट कर सकेंगे, एम्पावर कर सकेंगे। एम्पावर करो सभी को तुम्हारे बाजू बाजू में। तुम भी, तुम्हें पेन पता है क्यों मिला है? ताकि तुम उस पेन को एक्सपीरियंस करो, तुम स्ट्रांग बनो, और जितने लोगों को वो पेन मिल रहा है तुम उनको एम्पावर कर सको। तुम्हें पेन ही नहीं मिलता तो तुम कैसे सीख सकते, कैसे किसी की पेन को तुम समझ सकते, कैसे एम्पैथाइज कर सकते, कैसे चेंज ला सकते? यूनिवर्स को ट्रांसफॉर्मर्स पसंद है। यूनिवर्स चाहती है कि हर एक बंदा हर दूसरे बंदे की मदद करे, हर एक बंदा हर दूसरे बंदे की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। ये तुम्हारा गोल होना चाहिए।
ट्रांसफॉर्मेशन इज द अल्टीमेट गोल। खुद को भी ट्रांसफॉर्म करो और दूसरों को भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रेरित करो, उनकी भी मदद करो। ये सबसे बड़ी मदद है, ये सबसे बड़ी मदद है। एम्पावर हो तुम खुद भी और लोगों को भी एम्पावर करो, ठीक है।